चैप्टर नंबर 6 हमारा पिछले चैप्टर की बोरियत से अच्छा है। पिछला चैप्टर थोड़ा बोरियत वाला था, लेकिन ये चैप्टर मजेदार है। ये चैप्टर है जो हमें बताता है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। मतलब जो सप्लाई है वो कब की मानी जाए, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? मान लिया कुछ चेंजेस आ गया कि इस दिन से इस वाली आइटम पर जीएसटी लगेगा या इस दिन से नहीं लगेगा, कुछ ऐसा चेंजेस आया, या जो है जीएसटी का रेट चेंज हो गया। अब अगर आपको यही नहीं पता कि ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो आप उस पर कौन सा रेट लगाएंगे? तो हमें ये पता लगाने के लिए कि कौन सा रेट, कोई चेंजेस नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चेंज आ गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में after studying this chapter you will be able to identify the point in time when the liability to pay GST। और GST आपने देना कब है, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना, कि GST आपका कब देना बनता है, वो सारी चीजें हमें पता चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? GST इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई पर बेस्ड है GST, ये तो हमें पता है शुरुआत से। A supply consists of elements that can be separated in time, like purchase order है। अब माल खरीदने में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपने ऑर्डर किया, एग्रीमेंट बना, माल डिस्पैच हुआ, उसकी डिलीवरी हुई, है ना। ऐसी सर्विस में भी बात हुई, उसके लिए फिर परफॉर्मेंस हुई, बुक्स में एंट्री हुई, इनवॉइस बना, पेमेंट हुई। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए। ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी आपसे बात करी, सब कुछ अभी खत्म हो गया। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कौन सा है वो पॉइंट ऑफ टाइम जब हम कह सकते हैं कि जीएसटी पेबल है। डज इट बिकम पेबल व्हेन एन एग्रीमेंट टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज मेड, or when the goods are shipped or the services are provided, or when the invoice is issued, or when payment is made। तो कब है हमारा पॉइंट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? What if the goods are shipped over a period of time? हमारा माल अलग अलग समय पर जा रहा है, अगर सर्विस अलग अलग समय पर की जा रही है, तो provision related to time of supply provide answer to all such and other questions that arise with respect to time and liability to pay GST। In other words, time of supply indicate the point in time when the liability to pay tax arises। It is important to note here that though the liability to pay tax arises at the time of supply, the same can be paid to the government by the due date prescribed with reference to the said time of supply। तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होती है डेट। फॉर इंस्टेंस द टाइम ऑफ सप्लाई इज 25th May। द टैक्स लेवाइबल देयर ऑन वुड बी पेबल लेटेस्ट बाय द 20th June, विच इज द ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड मंथली बेसिस पर हमें बोल रखा है। The CGST Act provides separate provision for time of supply for goods and services by Section 12 and 13 respectively। Section 14 provides the method of determining the time of supply in case there is a change in the tax rate of tax on supply of goods or services। Provision of Section 14 relating to determination of time of supply in case change in rate in tax in respect to supply goods service will be discussed in the final level। तो Section 14 तो फाइनल लेवल पर डिस्कस होगा। Section 12 and 13 employ the provision of Section 31 relating to issue of tax invoice as a reference point। Therefore, it will be useful to read this chapter in conjunction with the provision related to tax invoice discussed in Chapter 10। Events like issue of invoice, receipt of payment, provision of service, receipt of service as recorded in the books of account need to be analyzed to determine the time of supply when the tax
on supply is payable under forward charge. When the tax on supply is payable under reverse charge, even like date of receipt of goods or service, date of making payment, date of issue of invoice, etc. to be analyzed. The provision related to time of supply essentially fix the tax collection even to the earliest possible time. In the subsequent pages of chapter, section 12 and 30 are extracted, followed by their analysis to understand how to determine the time of supply of goods and services respectively. When studying the statutory provision, the definition must also be referred to simultaneously so as to understand the precise meaning of the terms used. Provision of time of supply under CGST Act have also been made applicable to IGST Act via section 20 of IGST Act. Relevant definition लगभग हमें पता है associated enterprise shall have the same meaning in assigned to section 92A of Income Tax Act. Broadly, an associated enterprise in relation to another enterprise means an enterprise which participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise. मतलब एक दूसरे के associate है, control करते हैं. डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, इनवॉइस किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, है ना. गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट includes actionable claims, growing crops, grass and things attached to or forming part of land. ये हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं. मनी एंड सिक्योरिटी हमारे गुड्स के मीनिंग में नहीं आती, इसीलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता है. प्रेस्क्राइब मतलब जो बताया गया, रिवर्स चार्ज हमें पता है, सर्विसेज हमें पता है ना. तो गुड्स मनी और सिक्योरिटी नहीं है. मनी सिक्योरिटी तो है नहीं, गुड्स इसलिए नहीं है, गुड्स को अलग से हम देख रहे हैं, है ना. रेसिपिएंट कौन होता है, जिसको, ये सब डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग अलग चैप्टर में, तो ये दोबारा बताऊं क्या आप लोगों को, क्या काम चल जाएगा. तो हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो है सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 में और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12. सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. तो आपकी लाइबिलिटी कब अराइज होगी गुड्स पर जीएसटी देने की, जब सेक्शन 12 आपसे कहेगा. ये बात कहता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली the date of issue of invoice by the supplier, date of issue of invoice, or the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice with respect to supply. इसका मतलब हमें सेक्शन 31 पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा. सेक्शन 31, ठीक है ना. सेक्शन 12 1 2 सबसेक्शन 3 4 5 6 के बाद सेक्शन 31 दे रखा है, क्योंकि हमें बोल रखा है कि जो सेक्शन 31 के हिसाब से टाइम है वो क्या है सेक्शन 31 का टाइम, तो सेक्शन 31 तो पढ़ना पड़ेगा ना. तो सेक्शन 31 का रिलेवेंट पार्ट है यहाँ पर, तो यहां लिखा है टैक्स इनवॉइस टू द एक्सटेंट रिलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods. जहां पर हमें सप्लाई करने के लिए मूवमेंट करना है गुड्स का, तो जैसे ही माल हमारा रिमूव होगा तो वो एक हमारा है टाइम , जहां पर हमें इनवॉइस बनाना पड़ेगा.
ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट इन एनी अदर केस। इसका मतलब कि आप जनरली क्या है, रिमूव जब माल होगा तो उस समय हमें इनवॉइस बनाना। तो a registered person supply taxable before or at the time of removal of goods। जैसे माल जा रहा है तो इनवॉइस बनाना पड़ेगा, या डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो यहाँ क्या लिखा है, इशूज ए टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स द टैक्स चार्ज देयर ऑन एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब provided that government may on the recommendation of council by notification specify the category of goods or supply in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and manner as may be prescribed। बताइए जनरल है, इसको गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेशल सप्लाई या स्पेशल गुड्स के केस में चेंज कर सकती है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व्ड, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or as the case may be each payment is received। तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, दूध वाला दूध देने आ रहा है, हर बार आ रहा है ना। तो आपको पेमेंट आप किस तरीके से जो करें, जैसे इनवॉइस बनता है तो, या पेमेंट का पैटर्न है, इनवॉइस नहीं बन रहा है तो वो सिचुएशन है। और लिखा है कि 7 सबसेक्शन में नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन वन goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier। मेनली बात आपको सबसेक्शन 1 की करनी है, बाकी तो सब हो जाएंगी। तो सेक्शन 1 कहता है रिमूवल, और अगर रिमूवल वगैरह का केस नहीं है, अलग है, तो डिलीवरी। ठीक है, तो उसे बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ तो हमारा क्या है, तो या तो वो रिमूव करने से पहले, माल को रिमूव करने से पहले ही इनवॉइस बना दे। जैसे मेरा माल कल को जाना, मैंने आज ही इनवॉइस बना दिया, तो वो इनवॉइस का हिसाब हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अगर मैंने इनवॉइस नहीं बनाया है और कल को माल रिमूव हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई वो वाला हो जाएगा, माल रिमूव नहीं बनाया इनवॉइस तो भी। तो क्या लिखा है, डेट ऑफ इशू बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट, मतलब क्या है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई। ठीक है, और डिलीवरी है इन केस ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, तो लिखा है द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ए पार्ट में लिखा हुआ है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, ये ए पार्ट में लिखा है। फिर बी पार्ट में क्या लिखा है, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, और पेमेंट डेट, है ना, विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब जनरली क्या डेट है, जनरली आप कह सकते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, जो सबसे पहले। प्रोवाइडेड दैट वेयर the supplier of taxable goods receive an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। अब ये क्या कहना चाह रहा है, कई बार क्या होता है, हमने एडवांस ले लिया 20,000 रुपए का, ये क्या ले लिया, एडवांस।
और एक्चुअल में जब इनवॉइस बना तो 19,500 रुपए का बना, या नहीं? तो लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्ड एन अमाउंट अप टू 1,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस, the time of supplies to the extent of such excess shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount. मतलब क्या हुआ, अब ये 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, अब ये 500 हमने, अगर वो हमसे माल लेता रहता हमने कहा अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, अब अगली बार में बड़ी दिक्कत आ जाएगी इस 500 रुपए को एडजस्ट करने में। उन्होंने कहा भैया ये ऐसे ही टैक्स देने के लिए मैं कह रहा हूँ भैया इस पे 500 रुपए पे अभी टैक्स लेके इस अभी खत्म कर दो, इनवॉइस की डेट ही मान लो, इस एक्सेस अमाउंट कौन संभालता रहेगा, हिसाब करता रहेगा अलग से, लेकिन अप टू 1000, क्योंकि छोटा मोटा एडवांस इधर उधर चलता रहता है तो उसको आप अभी कर दो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वन कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस बी द पेमेंट। तो हमारा ए और बी दोनों में हमारा पेमेंट की बात है और इनवॉइस की बात है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी the date on which supplier received the payment shall be the date on which the payment is entered in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank whichever is earlier। अब हमने जो बात करी पेमेंट की डेट, अब पेमेंट की डेट का क्या मतलब है, अब मान लिया आपने मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, आज मैंने एंट्री बनाई 5 दिन बाद, तो डेट ऑफ पेमेंट आज की है, समझ रहे हो, और ना कि 5 दिन बाद। और अगर आपने मुझे आज चेक दिया, मैंने आज एंट्री बना दी, चेक का पैसा आया 4 दिन बाद, लेकिन मैंने एंट्री कब बना दी, आज, तो आज की डेट ऑफ पेमेंट है, जो भी जल्दी हो, ठीक है ना। तो डेट ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होगी, रिसीट और एंट्री विच एवर इज अर्लियर। तो सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 एंड 2। 12 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि इनवॉइस की डेट, रिमूवल की डेट, रिमूवल की डेट का हिसाब नहीं बैठ रहा तो डिलीवरी की डेट या पेमेंट की डेट, जो भी जल्दी हो वो है टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस वाला था। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो इन केस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और पेबल liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following dates। तो ये क्या है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। रिवर्स चार्ज के हिसाब से कौन, मान लिया मैं परचेजर हूं और आप कौन है, सप्लायर, तो फॉरवर्ड चार्ज पे आपके हिसाब से टैक्सेबल होता है, तो आपके हिसाब से है कि रिमूवल डिलीवरी। रिवर्स चार्ज पे मैंने देना है, तो मेरे एंड पर कब होगा, जब माल मिलेगा, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। अब मैं पेमेंट आपको करूंगा ना, तो मैं एंट्री कब बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि आप एंट्री कब बना रहे। तो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक, वहां पर तक क्रेडिटेड इन द बैंक क्योंकि वहां पैसा मिल रहा था सप्लायर को, यहाँ डेबिटेड क्योंकि मेरे अकाउंट से जा रहा है। तो मैं जिस दिन एंट्री बना रहा हूँ या मेरे, तो यहाँ पर मैं वही कर देता हूँ ना, डेट ऑफ पेमेंट है ना, वहां पर भी डेट ऑफ पेमेंट थे, वहां पर डेट ऑफ पेमेंट में विचर एलियर था, यहाँ पर भी एलियर है, तो ये डिटेल क्या लिखना, तो वहां यहाँ पर क्या आया, रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in the name lieu of thereof of the supplier। मतलब इनवॉइस बन गया,
अब मान लिया इनवॉइस बन गया, मेरे पास माल नहीं आया, मैंने पेमेंट नहीं करी, तो कह रहे भैया ऐसा नहीं है जन्म जन्म इंतजार करते रहेंगे तुम्हारा, तो 30 days आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 30 days आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस, जो भी जल्दी होगा वो वाला टाइम आ जाएगा जब रिवर्स चार्ज के हिसाब से रेसिपिएंट को टैक्स देना बनता है। Provided that where it is not possible to determine the time of supply under ABC, the time of supply shall be the date of entry in the books in the recipient। मान लिया कोई एक्सेप्शनल केस है, कुछ नहीं पता चल रहा, तो जिस दिन रेसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा उस दिन हम पॉइंट ऑफ जो है सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अब वाउचर वगैरह होते हैं ना, मैंने आपको एक कूपन वाउचर इशू कर दिया, उस वाउचर का इस्तेमाल आप कभी फ्यूचर में कर लो। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ सप्लायर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट। मतलब मैंने आपको कूपन दिया, उस कूपन का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए कर सकते हो उस पर डिफाइंड है। तो इशू करते हुए अगर मुझे पता है सप्लाई किस चीज की होनी है, तो डेट ऑफ इशू वाउचर ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। अब मान लिया मैंने आपसे कहा भैया ये वाउचर है और इस वाउचर से आप जाइए और एक मोबाइल फोन सैमसंग के स्टोर से मोबाइल फोन, ये वाला मोबाइल फोन ले सकते हो आप, पर्टिकुलर वही है कि वही चीज ले सकते हो। तो वो क्या है, मुझे पता है कि ये सप्लाई इसी चीज की होगी, तो वो क्या है, जब मैं इशू करूंगा वो ही है टाइम ऑफ सप्लाई और टैक्स मुझे अभी देना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको वाउचर दिया और मैंने वो वाउचर 50 आउटलेट पे अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 1000 रुपए का वाउचर है, वो आप हजारों 85 अलग अलग आउटलेट है, कहीं पर भी जाके उनकी चीज खरीदोगे 1000 रुपए तक का वाउचर आपका रिडीम हो जाएगा। हमें यही नहीं पता वो इस्तेमाल किस चीज के लिए होगा, तो जब वो रिडीम होगा तभी वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाए। ठीक है, where it is not possible to determine the time of supply under the provision of section 2, subsection 2 और subsection 3 और subsection 4, ये सब फेल हो गए, सेक्शन सबसेक्शन 2, 3, 4 सब फेल हो गए। तो लिखा है इन केस वेयर ए पीरियोडिकली रिटर्न आर टू बी फाइल विद द ड्यू डेट ऑन द रिटर्न। आप पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करते हो तो जो ड्यू डेट रिटर्न है वही मान लो भैया, अगर नहीं तो जब टैक्स दोगे वही मान ली जाएगी डेट, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स दे दो। The time of supply to the exchange relate to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। मैंने आपको माल बेचा और मैंने उस पर लिखा है कि अगर आपने मुझे 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी तो मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। वो इंटरेस्ट जब मिलेगा तभी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि अनसर्टेन होता है, जनरली मिलता नहीं है इंटरेस्ट, हम कहते तो है मिलता कब, तो जब मिलेगा तभी ये इसकी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी। सेक्शन 31 हम देख चुके हैं, तो सेक्शन 12 मस्ट बी रेड विद सेक्शन 31 which prescribe in detail date on which invoice must be issued in various situations। तो अब इस पूरे सेक्शन 12 और 31 को मिलाकर एनालाइज करते हैं। तो सेक्शन 12 हमें क्या कह रहा है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर, रेजिडुअल केसेस में और एडिशन के केस में।
तो हमारी 5 चीजों के केस में सेक्शन 12 हमें बताता है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड चार्ज के लिए देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 प्लस सेक्शन 31। तो क्या था, हमने क्या डेट देखी थी? 3 डेट देखी थी हमने, इनवॉइस की डेट, रिमूवल या पेमेंट, है ना। तो एज पर सेक्शन 12(2) द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, है ना, और द लास्ट डेट ऑन विच द invoice should be issued as per the section 31 to the extent invoice cover the supply of goods। तो इसका मतलब ये हमारा क्या था? रिमूवल था, रिमूवल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी था, है ना, और ये डेट ऑफ इशू हो गया, और डेट ऑफ रिसीट बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स विच एवरेज अर्लियर था। Tax not payable at the time of receipt of advance for supply of goods. Special procedure for payment of tax in case of supply of goods. Notification number 66 by 2070 CT dated 15/11/17 specified that a registered person excluding commercial composition supply। composition के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो सस्ता कम ITC नहीं ले पाता है और सस्ता के लिए करता है, कंपोजिशन लेता है। तो अगर कंपोजिशन के अलावा, क्योंकि कंपोजिशन तो ITC लेगा नहीं और फिक्स रेट है उसका, तो नोटिफिकेशन कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है शुड पे GST ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन 12(2)(a), दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ought to be have been issued in terms of section 31। तो ये क्या कह रखा है कि इन्होंने नोटिफिकेशन इशू करा और इन्होंने कहा कि भैया आप ये 2 पॉइंट ले लो, ये डेट ऑफ रिसीट के पॉइंट यहां पर नहीं है। क्या बोला है? GST ऑन आउटवर्ड सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ 12(12)(a), है ना, क्या बोल रखा है? 12(12)(a), तो 12(2)(a), है ना, तो 12(2)(a) ये है, और B नहीं है, यहाँ पेमेंट की बात नहीं है, है ना। तो ये क्योंकि अगर आपको एडवांस मिल गया किसी से और आपने माल दिया नहीं या कुछ नहीं, उस पर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, एडवांस पे टैक्स देना लग गया, आप शुरू हो गए तो। इन सिंपल वर्ड्स, ऑल टैक्स पेयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज except composition supply are not required to pay GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods। एडवांस की बात नहीं है, ये बात पता है वो क्या था? वो ये था, हमने क्या पढ़ा था? इनवॉइस या रिमूवल ऑफ गुड्स और पेमेंट, यही तो था। असल में होता क्या है, आपको मैंने माल दे दिया, ठीक है, या आपका माल अलग कर दिया, अभी रिमूव नहीं हुआ, इनवॉइस बनानी है, आपका सारा तय हो गया, आपने मुझे पेमेंट करा, ये एडवांस पेमेंट नहीं है, पार्ट पेमेंट है। तो वो वाला पेमेंट का मतलब था वहां, एडवांस पेमेंट का मतलब नहीं था। क्योंकि अगर आपने मुझे एडवांस दिया 10,000 रुपए और आपने कहा ये माल हम बनाओ या को हम बाद में ले लेंगे, तो उस पर GST नहीं लगेगा जब तक वो सेल नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगा, है ना। तो इसलिए रिमूवल ऑफ डाउट के लिए नोटिफिकेशन है। The entire GST shall become payable only when the invoice for the supply of goods is issued और issue होना चाहिए। Thus, time of supply of goods for the purpose of payment of tax is the date of invoice or last date। तो मतलब कहने का मतलब पेमेंट की बात ही हटा दी। ए ने एक एंटर किया है एग्रीमेंट बी के साथ 100 किलो रॉ मटेरियल के लिए। ए ने सप्लाई किया 80 किलो रॉ मटेरियल और उसने इशू करा इनवॉइस फॉर द सेम, 80 किलो का ही इनवॉइस इशू कर दिया। Here the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg, that is to be extent covered by the invoice। Therefore, the provision relating to the time of supply only will be applicable to 80 kg and not for the entire 100 kg। ठीक है, क्योंकि सप्लाई है।
The relief of not paying GST at the time of receipt of advance is available only in case of supply of goods and not in case of supply of services. ठीक है. डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हमें पता है, जो बुक्स में बैंक में एंट्री हो या बुक में हो, जो भी जल्दी हो जाए, है ना. सिग्निफिकेंट ऑफ टू द एक्सटेंट द इनवॉइस ऑफ पेमेंट कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स. बार बार लिखा था टू द एक्सटेंट इनवॉइस कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसा हर जगह लिखा था. तो उसका क्या मतलब? सपोज ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज पेड इन एडवांस और इनवॉइस इज इशूड फॉर पार्ट पेमेंट. In such case, the time of supply will not cover the full supply. The supply shall be deemed to have been made only to the extent it is covered by the invoice or part advance payment. However, it may be noted that in case of goods, tax is payable on the basis of issuance of invoice or last date, है ना. Even if any advance has been received before the issuance of, तो एडवांस मिला तो उसके केस में हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, वही बात बता रखी. सेक्शन 31 में क्या बता रखा है? टाइम लिमिट. तो सेक्शन 12.2 क्या कहता है कि यहाँ पर इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से होना चाहिए. 31 क्या कहता है? इनवॉइस को या तो आपको रिमूवल से पहले या रिमूवल के समय आपको बनाना पड़ेगा, जहां पर मूवमेंट होती है, और जहां मूवमेंट नहीं होती, डिलीवर गुड्स available to recipient in any other cases. In case of continuous supply, the invoice should be issued before or at the time of periodical statement या receipt of periodical repayment. Continuous supply of goods is the supply of goods provided or agreed to be provided continuously recurring basis under a contract, जहां पर सप्लायर इशू करता है इनवॉइस रेसिपिएंट को रेगुलर बेसिस पर, और पेमेंट भी उस तरीके से होती रहती है. In case of goods sent on approval basis, invoice should be issued before the or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. इस पर हम आगे अभी जब चैप्टर करेंगे तो डिटेल में बातचीत कर लेंगे. कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है 100 चेयर 15,000 रुपए के हिसाब से 21 अगस्त को. Chairs are removed from the warehouse on 5th September along with invoice issued on the same date. Joy Sales has paid 30% of the total contract value on 21st of August. Balance after delivery on 10th of September. Since the invoice is issued at the time of removal, तो हमारा क्या था? हमारा ये था कि इनवॉइस की डेट, तो इनवॉइस भी उसी दिन है जिस दिन रिमूव हुआ है ना. उसी दिन इनवॉइस बनाया इन्होंने 5 सितंबर को. इट इज इशूड विद इन द पीरियड टाइम लिमिट एज पर द सेक्शन 31, क्योंकि उसमें लिखा जब रिमूव होगा उस दिन या उससे पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए, और तभी बना दिया है ना. तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100 ऑफिस चेयर है, एक ऑफिस चेयर 15,000 की है, तो 15 लाख रुपए की है. उस पूरे 15 लाख के लिए हमारा जो डेट है वो क्या होगा? इशू ऑफ इनवॉइस, दैट इज 5 सितंबर. जो 30% पेमेंट इन्हें 21 अगस्त को मिला है, तो उस समय हमें कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है. The provision related to time of supply of goods are contained in section 12 in respect of forward charge wide notification. क्योंकि नोटिफिकेशन की वजह से ही हम टाइमिंग रिसीट ऑफ पेमेंट को नहीं देख रहे हैं, वरना हमारा 4.5 लाख के लिए 21 अगस्त हो जाता, और बाकी जो बची हुई अमाउंट है 10.5 लाख उसके लिए 5 सितंबर हो जाता. तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उसे छोड़ दो. तो आपको अगर ये नोटिफिकेशन याद कर सकते हैं नंबर, तो नंबर याद होना चाहिए आपको कि भैया सेक्शन भी याद होना चाहिए. हम ये जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 रेड विद सेक्शन 31 एंड विद नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. तो क्या क्या हमने देख लिया. सेक्शन 12 क्या कहता है फॉरवर्ड चार्ज के लिए? क्या कहता है सेक्शन 12?
डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 और डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि सेक्शन 12 तो यही कह रहा है, तो सेक्शन 12 क्या कह रहा है, डेट ऑफ पेमेंट, है ना। अब आगे वो नोटिफिकेशन की वजह से हमने कहा कि ये नहीं देखेंगे, विच एवरेज अर्लियर, ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ गुड्स, तो जीएसटी की पेमेंट कब करनी है, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से, है ना। और 12(2)A क्या कहता है, डेट ऑफ, और वो नोटिफिकेशन में क्या बोला था, 12(2)A माना जाएगा। 12(2)A में क्या लिखा था, डेट ऑफ इनवॉइस या सेक्शन 31 के हिसाब से। Effectively, in case of goods, non-GST payable is at the time of receipt of advance. Illustration number 1. A machine has to be issued at site. It is done by sourcing various components from vendor and assembling the machine at site. तो हमने साइट पर ही मशीन को असेंबल करना है। The detail of various event. 17 सितंबर को हमने purchase order with advance of 50,000 is received for machine worth 12 lakh. An entry is made. लेकिन हमें पेमेंट एडवांस तो रिलेवेंट हो गया। 20 सितंबर को मशीन असेंबल हो गई, टेस्ट हो गई साइट पर, और बायर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और 23 को हमारा इनवॉइस रेज्ड हो गया, और 4 को बैलेंस पेमेंट मिल गई। तो आपके हिसाब से आप बताइए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, 17 सितंबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 4 नवंबर? तो क्या डेट आएगी बताओ। तो हमारे पास पेमेंट की डेट तो इररिलेवेंट है ना। तो हमारे पास जो डेट है वो रिमूवल ऑफ गुड्स है, अगर हमारे पास से माल जा रहा है, और अगर वो हमारे पास से माल नहीं जा रहा है जो अलग केस है, डिलीवरी की बात आएगी, और डिलीवरी हुई है 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर या 23 अक्टूबर, जो भी जल्दी हो, तो 20 अक्टूबर। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे जीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई 12(2)A के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंटायर अमाउंट का सप्लाई है वो है 20 अक्टूबर को, डिलीवरी हुआ है ना। और वो सेक्शन 31 कहता है, और सेक्शन 12(2)A के हिसाब से डेट ऑफ इनवॉइस, जो हमारा डेट ऑफ इनवॉइस है वो 23 अक्टूबर है, दोनों में से जो जल्दी है तो 20 अक्टूबर, ठीक है। गैस जाती है पाइपलाइन से, तो कंटिन्यूस सप्लाई हो गया, उसमें हमने कहा था या तो वो पेमेंट का पैटर्न हो या स्टेटमेंट हो, जो पीरियोडिक स्टेटमेंट जाती है। द सप्लाईज टू बी मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मंथली पेमेंट आर टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और वह जुलाई, तो यही डेट हो जाएगी, है ना। तो यही डेट हो जाएंगी। तो एज्यूम इनवॉइस जो है इशू इसी दिन हो गए हैं, है ना, तो यही डेट हो जाएंगी हमारी 2-2 लाख के लिए। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। Excess payment up to 1000, option of taking invoice date as a date of supply. In terms of the proviso to subsection 12, subsection 2 of section 12, for a payment up to rupees 1000 received in excess of the value of goods invoiced, the supplier can choose to take the date of invoice with respect to such excess amount as the time of supply of goods. Since GST of supply of goods is payable only the basis of issuance of invoice, the provision is practically irrelevant for the supply of goods. अगर एडवांस की बात होती तब होती कि एडवांस आ गया, अब उसमें कम ज्यादा है तो क्या करें। पहले क्या होता है, देखो पहले क्या होता था, एडवांस आया 20,000, ठीक है, तो 20,000 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। अब इनवॉइस बना 19,600, तो फिर अब 400 का रिवर्सल करना पड़ता ना, तो उन्होंने कहा मर्जी है वो,
कब करें। लेकिन अब तो बात ही खत्म हो गई ना, अब एडवांस पे तो हम लगा ही नहीं रहे, अब तो केवल इसी पे लगा रहे हैं, तो इस पे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के लिए हमने क्या पढ़ा था, माल मिला, पेमेंट मिली, पेमेंट उसने करी, ठीक है ना, तो वो हम पढ़ रहे थे। और क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज क्या था कि जब माल मिल गया या उसने रिकॉर्ड कर दिया, है ना, या फिर 30 दिन बाद इशू ऑफ इनवॉइस के, ठीक है, जो भी जल्दी हो जाए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द इस पैरामीटर से, तो डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। द रिलीफ of not paying GST at the time of receipt of advance in case of supply of goods is available only when the tax is payable under the forward charge. In case of reverse charge, GST is payable at the time of payment if payment is recorded made before receipt of goods. Advance payment पे GST लगेगा, वो 12 to A के लिए बात हुई थी, है ना। The provision related to time of supply of goods in case of reverse charge हम क्या है डायग्राम में समझते। तो माल मिला, पेमेंट हमने बुक्स में रिकॉर्ड करी, पेमेंट अकाउंट से कटी या 31वां दिन, जो भी जल्दी हो जाए इनवॉइस डेट से, ठीक है। और अगर हमारे को किसी तरीके से नहीं पता चल रहा है तो हम जब एंट्री बनाएंगे रेसिपिएंट की बुक्स में तब। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। May 4 को सप्लायर ने इनवॉइस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से दिया है, और इसके 30 दिन के बाद अगला दिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस लैप्स ऑन June 3। तो June 3 आ रहा है May 4 के बाद में, और May 12 को माल मिल गया, तो ये तो इरेलेवेंट हो गया, ये बाद की डेट है, पहले डेट तो ये आ गई। और पेमेंट करिए तो तीनों में जल्दी डेट क्या है, May 12, May 30, और रिलैप्स हो रहे हैं तो 30 दिन, हमें 31वां दिन देखना, तो June 4, तो June 4, May 12, May 30, तीनों में जो जल्दी हो, क्या है तीनों में जल्दी, May 12, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास June 4, क्योंकि June 3 को 30 दिन खत्म हो रहे हैं, हमें 31वां दिन लेना, June 12, July 3, तीनों में सबसे जल्दी क्या है, तो June 4 आ जाएगा, ठीक है। इसे देखिएगा आप। वाउचर के केस में अगर हमने वाउचर इशू करते हुए पता है कि किस चीज के लिए वाउचर है, तो इशू डेट, नहीं पता तो रिडेम्पशन डेट, ठीक है, ये लिखा टाइम ऑफ वाउचर में। तो डेट ऑफ इशू वाउचर अगर हमें पता है आइडेंटिफाइबल, नहीं तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो इन्होंने एक फूड कूपन दिए हैं, कंपनी गिव्स दिस कूपन टू इट्स एम्प्लॉय, है ना, परक्यूजिट में दे दिए। कूपन कैन बी रिडीम्ड फॉर द परचेज ऑफ any goods item of goods provision in the outlet that are the part of the program. As the supply against which the coupon will be redeemed is not known, क्योंकि किसी भी सामान के लिए हो जाएगा, तो हम सप्लाई क्या लेंगे जब वो रिडीम होगा। With each purchase of large pizza during the Christmas week from Perfect Pizza, one can buy a voucher of 20 which can be redeemable till 5th June for small pizza. तो हमें पता है इशू करते हुए इससे केवल पिज्जा ही मिलेगा, तो ये डेट ऑफ इशू हो जाएगा, ठीक है। तो फूड पास है, एनी फूड कैन बी परचेज्ड, तो हमारे पास सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडेम्पशन। शर्ट का कूपन है, हमें पता है शर्ट ली जा सकती है, आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेजिडुअल केसेस, जो बचे हुए केसेस है, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और एनी अदर केस जीएसटी जहां पर पेमेंट करी जाए, है ना।
तो डेट ऑफ रिटर्न और जीएसटी दिया जाए, ये तो बता ही दिया। और जहां पर एनहेंसमेंट है इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह के हिसाब से, तो कमर्शियली मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई में बोला जाता है कि लेट फीस पेनल्टी लगेगी अगर एक समय तक पेमेंट नहीं किया गया, है ना। तो so the point to consider here is that when the liability to pay GST will arise, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 कहता है कि जब ये एडिशन का अमाउंट मिल जाएगा तो आप इस पर जीएसटी देने का टाइम आ जाएगा। इन्होंने माल बेचा 6 जून को, कंडीशन है 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर इन्होंने 15 दिन में पेमेंट नहीं करी, ठीक है ना। तो इन्होंने 6 जून को माल डिलीवरी कर दिया, पेमेंट हुई 6 जुलाई को, 1 महीने बाद 15 दिन से लेट हो गए, तो इंटरेस्ट लगना चाहिए, है ना। तो जो माल है उसकी डेट तो 6 जून है, लेकिन जो इंटरेस्ट अगर मिल जाता है 6 जुलाई को, तो इंटरेस्ट की डेट 6 जुलाई हो जीएसटी की, ना कि 6 जून, ठीक है। तो जो हमने पूरा पढ़ा वो सब यही है हमारा। सप्लाई ऑफ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ इशू या फिर डेट ऑफ रिमूवल, जो भी जल्दी हो, है ना। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट, बैंक में डेबिट हुआ या 31वां दिन, जो भी जल्दी हो। और टाइम ऑफ वाउचर में आइडेंटिफिएबल है तो उसी समय, नहीं तो रिडेम्पशन के समय। रेजिडुअल केसेस में पीरियोडिकल पेमेंट या टैक्स दिया जाए, और एडिशन जो होता है उस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, जब वो पैसा मिलेगा। तो ये था पूरा सेक्शन 12। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन नंबर 13 देखेंगे, सप्लाई का